children, when she has joined the orchestra, that time she was very small, okay, and she used to play with others. But slowly and gradually, when she got recognition from everywhere, she started doing solo performance, okay. And in that solo performance, she was doing excellent in that solo performance also. Once in the interview, she said that I generally note people by the movement of the lips. Okay, how do the people say? By that thing, I can make out what they are trying to say. But then it becomes very hard for the people, those who are having mustaches. The people, those who are having mustaches, are not able to make out what are they trying to say. Okay, children, like this way, Edvig Chandra means by this way, she was able to make out what people is saying. And she is also said that in one of the interview, the interviewer asked that, how is that your speech is very clear? Generally, children, those who are not able to listen properly, they can't speak properly. But she was having a very clear speech. Now, this is because she was able to speak and listen very carefully till the age of 10. Till the age of 10, she was not having any problem. Okay, children, after that only the problem started. So, now she is able to speak very clearly. There is no problem in the speech. And she managed to learn French and Japanese also. She knows the basic Japanese also because these are the two countries where she is performing the musician show all the time. And she always plays the xylophone and she always feels the music. She sends the music. And whenever she sits with the musical instrument, she removes the shoes and she sits there barefootedly so that she can understand the music in a proper way. Not surprisingly, Jelenia audience are very highly impressed. Okay, and she whatever amount she earns, children. Okay, half part of it she gives to the institution which take care of the deaf and the children who are not able to speak. She also says that God may have taken the hearing scale from me, but God has given me something very extraordinary which even the ordinary people cannot use. So, like this way, she has a beautiful expression and a beautiful view about the school, about the life. And she also believes that I do a lot of work. I love to do programs. I love to do shows. I love to do musical concert because this keep me busy. And once I'm busy, I don't have any negative view. I don't have anything which is very negative or which is very dissatisfactory in front of me. I just have this positive view and I do each and everything with a very positive view. Then Jelenia has already accomplished more than she was already very successful, more than twice the people of her age. Means the success that the normal people cannot get at the age of this girl, she has got that much success. And she has brought the personifiers in front of the orchestra. Means from an orchestra level she has joined this thing and she has taken music to another level. Okay, now people look music and she inspire other handicapped people also to do something extraordinary in their life according to their particular interest. If children, you will start doing and you will start preparing, then definitely you will be getting the success. So this is what Jelenia is telling, that we have faith in God and have faith in your own self. Then you can achieve many things. Okay, children, now I am going to explain you the same thing in Hindi. In this lesson, the sound of music, it is divided into two parts. The first part is telling us about Evelyn Jelenia. Okay, she was a girl who was basically a musician. ये एक musician girl रहती है, ये xylophone play करती है, ठीक है.
जाइलोफोन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम बीट्स के थ्रू बजाते हैं और उसमें नीचे से हम जो उसके नोट्स हैं वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जब जिलेनिया 11 इयर्स की थी तब इसमें एक सडन प्रॉब्लम डिस्कवर हुई इसके अंदर, इसको सुनाई नहीं देता था, धीरे धीरे करके उसकी सुनने की क्षमता कम होती गई। जिलेनिया के कान में बहुत सारे छोटे छोटे फ्रैक्चर्स पाए गए थे जिसके वजह से वो सुन नहीं पा रही थी, ठीक है बच्चों। हम आगे बढ़ते हैं कहानी में। जब वो सुन नहीं पा रही थी तो उसकी मदर को स्कूल वालों ने बोला, उसको मार्क्स बहुत कम मिल रहे थे। उससे चिंतित होकर उसकी मदर स्कूल गई, फिर वहाँ उन्होंने पता किया कि इसको शायद सुनने में या समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसको किसी डॉक्टर के पास दिखाइए। जब वो डॉक्टर के पास ले गई और जब उसकी मदर ने उसको पहली बार नोटिस ये चीज़ करी तब जब वो घर में पियानो क्लासेस चल रही थी और उसकी मदर ने उसको आवाज़ दी, मगर जिलेनिया कुछ नहीं सुन रही थी, वो सुन ही नहीं पा रही थी कि उसकी मदर उन्हें बुला रही है। जब वो सुन नहीं पा रही थी कि उनकी मदर उन्हें बुला रही है तो फिर कहा कि फिर उनकी मदर ने सोचा कि अब मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। जब वो डॉक्टर के पास गई तब उन्होंने नोटिस किया कि इसको हियरिंग एड प्रॉब्लम है, अब वो अच्छे से सुन नहीं पाएंगी। उसको मल्टीपल फ्रैक्चर हुए हैं कान में जिसका उस टाइम पे कोई इलाज नहीं था, ठीक है बच्चों। इस तरीके से जिलेनिया ने लेकिन हार नहीं मानी, ना ही उसकी मदर ने हार मानी। उसकी मदर ने उसको स्पेशल स्कूल में भेजा और म्यूजिक क्लास कंटिन्यू रखी। एक दिन वह म्यूजिक स्कूल में जब वो थी तब उसने एक बच्चे को देखा, वो जाइलोफोन बजा रहा था। जिलेनिया ने उस दिन डिसाइड किया कि अब मुझे भी जाइलोफोन ही बजाना है, मगर उसको बहुत सारे टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया कि नहीं, तुम जाइलोफोन नहीं बजा पाओगे क्योंकि इसमें बहुत सारे नोट्स होते हैं, हाई नोट्स, लो नोट्स, तुम समझ नहीं पाओगे इस चीज़ को। मगर उसने फिर भी कहा कि नहीं, मुझे जाइलोफोन बजाना है। और वहाँ पर एक सर थे जिनका नाम था रॉब कॉर्बस, उन्होंने उनकी मदद करी और उनकी हेल्प के द्वारा जिलेनिया ने म्यूजिक सीखा। उन्होंने क्या किया, पहले 2 ड्रम लिए बड़े बड़े, उनको एक हाई नोट पे और एक लो नोट पे सेट करा और उसके बाद उनको बोला कि अपनी बॉडी पार्ट से उन नोट्स को समझने की कोशिश करो। उन्होंने नोट्स को समझा, उनकी जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी था वो हाई नोट्स से था और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी था वो लो नोट्स समझता था। इसी तरह जब वो धीरे धीरे उन्होंने जाइलोफोन सीखा सर से, तो सर ने बोला कि म्यूजिक को अपने हर एक पार्ट के थ्रू समझो, अपने स्किन के थ्रू, अपने फिंगर्स के थ्रू, अपने थंब के थ्रू, ठीक है, हाथ के थ्रू, पैर के थ्रू, जितना आप म्यूजिक को समझोगे उतना ही ज़्यादा म्यूजिक आपको देगा। तो इस तरीके से बात आगे बढ़ी और उन्होंने म्यूजिक को समझा और उन्होंने इसी वे से म्यूजिक को समझा। वो ड्रम की आवाज़ पैरों से समझती थी, वो हाई नोट की आवाज़ अंगूठों से समझती थी। इस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे जब म्यूजिक को फील किया तो वो बहुत अच्छी म्यूजिशियन बन गई। फिर उन्होंने एडमिशन लिया रॉयल म्यूजिक स्कूल ऑफ इंग्लैंड में, जहाँ पे उनका रिकॉर्ड रहा है कि उन्हें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं, उन्हें बहुत ही अच्छे मार्क्स मिले हैं और वो अभी तक का हिस्ट्री में नोट किया गया है, उन्हें इतने अच्छे मार्क्स मिले हैं। इस तरीके से उन्होंने म्यूजिक में बहुत ही अच्छी उपाधि प्राप्त की। पहले वो ऑर्केस्ट्रा के साथ जाती थी, बजाती थी और धीरे धीरे उन्होंने जब उनको वो पॉपुलर होने लगी तो उन्होंने इंडिविजुअल्स काम करना शुरू किया, उन्होंने सोलो काम करना शुरू किया। जब उन्होंने सोलो काम करना शुरू किया तब उन्होंने देखा कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिली है। उन्होंने इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच और जापानीज भाषा भी सीखने लगी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जो भी मैं सीखती हूँ मैं इतने अच्छे से बोल पाती हूँ क्योंकि मैं 10 साल की उम्र तक सुन भी अच्छे से पाती थी और बोल भी अच्छे से पाती थी, तो मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिप रीडिंग के थ्रू लोगों को समझ पाती हूँ कि लोग मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मुझे जेंट्स के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जबकि मुझे डैड होती है, मैं उनकी भाषा नहीं समझ पाती हूँ बहुत आसानी से। उसने ये भी कहा है कि भगवान ने अगर मुझसे कोई चीज़ छीनी है तो उसके बदले भगवान ने मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ दी है, जिससे आज मैं अपनी ही नहीं दूसरों की भी मदद कर पा रही हूँ। मैं जितना अर्न करती हूँ उसका 1/4 हिस्सा मैं ऐसे इंस्टीट्यूशन में देती हूँ जहाँ डेफ और डम बच्चों का इलाज होता है।
और मैं हैंडीकैप लोगों को भी बहुत प्रोत्साहन देती हूँ कि वो भी कुछ डिफरेंट करें अपनी लाइफ में जिससे उन्हें सक्सेस मिले। वो ये चीज़ भी कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा समय अपना काम में स्पेंड करती हूँ। जब मैं अपना बहुत ज़्यादा समय काम में स्पेंड करती हूँ तो मैं बहुत बिजी रहती हूँ, उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी प्राप्त होती है और यह खुशी मैं दूसरों के साथ भी शेयर करती हूँ। जब हम जितना ज़्यादा काम करेंगे हम उतना ज़्यादा बिजी रहेंगे और उस तरह से हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में कभी कोई नेगेटिव व्यू या कभी कोई नेगेटिव ख्याल नहीं आएगा। ओके चिल्ड्रन, तो वो बताती हैं कि हमें बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए और हमें भगवान के जो डिसीजन भगवान ने हमारे लिए किया है उससे हमें बिलीव करना चाहिए। और अगर भगवान हमसे कोई चीज़ छीन लेता है तो वो दूसरी कोई चीज़ बहुत अच्छी हमको देता है जिसके द्वारा हमारी ज़िंदगी बहुत सफल हो जाती है और हमारी ज़िंदगी जो है वो दूसरों के लिए एक आधारशिला बन जाती है। ओके चिल्ड्रन, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।